Good. What we are. Welcome. Hey, we are live on Facebook. Good evening and welcome to Veranda. Veranda एक पहल कैसे कारवा बन जाती है, बहुतों की छोटी छोटी कोशिश कैसे पैमाना बन जाती है। ये जर्नी है म्यूजिक वेरांडा की, जो शुरू हुई 6 अप्रैल को। समय बहुत कठिन था, लॉकडाउन का था, परिस्थिति विषम, पर फिर एक डिवाइन इंस्पिरेशन मिला और वो इंस्पिरेशन था टू टेक म्यूजिक एंड कनेक्शन टू मेनी। हाय, आई एम अनिला रामपुरिया फ्रॉम दिल्ली, a mentor to entrepreneurs, visionaries, and initiatives. Let me tell you something more about music. It is a simple platform where we all music lovers, music connoisseurs, gurus, performers, and people who love music gather every evening at 9:30 p.m. to 10:30 p.m. And we decode music, we talk about ragas, we love and enjoy music together. So that is the connection that we all have developed through music. और उसके बाद हम सेलिब्रेट लेजेंडरीज एंड टॉक अबाउट म्यूजिक एंड बहुत सारे टॉक शोज भी करते हैं। और आज का दिन तो बहुत ही सुंदर है क्योंकि आज बर्थडे है लेजेंडरी सिंगर मुकेश साहब का। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट दिस हिज बर्थडे। और मुझे ये लगता है जैसे म्यूजिक वेरांडा भी एक कड़ी से दूसरी कड़ी बनता गया, उसी तरह से टॉक भी आज इसी तरह से क्यूरेट हुई है, ये प्रोग्राम भी इसी तरह से क्यूरेट हुआ है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले मधु मुकेश जी वेरांडा में आए और तो मुकेश जी के ही गाने गाते थे, तो उन्होंने मुकेश सर का बर्थडे और हमें मनाना है। और फिर मेरी ब्रह्मानंद जी से बात हुई तो ब्रह्मानंद जी से मैं सर जी के बारे में जो बहुत जो बता सकते हैं हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। उन्होंने संजय जी का नाम सजेस्ट किया, संजय टंडन जी का, एंड वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड दैट वी हैव संजय टंडन जी विद अस टुडे। सो वेलकम संजय टंडन जी, वेलकम टू दिस शो। ओके, थैंक यू अनिला, थैंक यू सो मच। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे बुलाया म्यूजिक वेरांडा में, और आपसे जो म्यूजिक वेरांडा की गतिविधि मैंने सुनी, सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द ग्रुप कि ऐसा भी ग्रुप एग्जिस्ट करता है और आप सब लोग इतने बढ़िया तरीके से संगीत का लुत्फ उठाते हैं, संगीत का मजा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक दिस इज जस्ट वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल एंड आई एम सो हैप्पी टू नाउ बी अ पार्ट ऑफ म्यूजिक वेरांडा। It's of course my खुशकिस्मती। Thank you so much for inviting me, Anila ji. Thank you. Thank you so much. While we go ahead, I would like to tell something about Sanjay Tandon ji. इनकी प्रोफाइल जब मैंने देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे इसको मैं थोड़ा छोटा करूं। He is such an impressive profile and he is such a well-connected person in music industry. So anyway, to start with, he is a chartered accountant. He is a leading copyright consultant to many leading singers of the country. And he is instrumental in strengthening the IPRS and now founder of CEO of IPRS. IPRS is Indian Performing Rights Society. He is founder of Indian Singers Right Association, also a singer and only sings Mukesh ji ke gaane, and sings under the baton of, he has sung under the baton of Shankar Jayakishan ji, Naushad ji, Khayyam ji, and many other legends. He has been conferred by Dr. APJ Abdul Kalam Sadbhavna Award. That is a very small profile that I have read. He has a very big profile, and I would actually request him कि वो अपने बारे में और भी कुछ बताएं। लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर महाश्वेता दास से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुकेश साहब के बारे में हमें कुछ बताएं। Over to you, Dr. Mahashweta. Yes. Very good evening. I hope all of you can hear me. My name is Dr. Mahashweta, and I happen to be a doctorate in Indian classical music from the University of Delhi. Today, I have been given this wonderful opportunity to speak on a legendary vocalist of our times, and we have all grown up listening to his beautiful songs. His real name was Mukesh Chand Mathur, and he was from an illustrious family of UP. And as they say, Mathurs are a very, very musical community, very much, and an intelligent community, very much like the Sains and the Thakurs in Bengalis. So his father was an engineer and his mother was a vocalist and a homemaker. Her mother was actually instrumental in making him
understand and take up music in an amateur manner, I would say. But then, he was more or less groomed by his auntie, Pyari Sundari ji, who used to literally come to his house to teach him music. So I would not get into, how he got into music and all that, because he has also worked in the public service, for the government of India for a brief period of time before he joined the film industry. And once he joined the film industry, there was no looking back. He has received the most coveted national award for the film Rajnigandha in 1973 for this beautiful song called Kai Baar Yun Hi Dekha Hai. He has gotten Filmfare Awards from very many times. For some of his very, very memorable songs are Kabhi Kabhi, based in Rag Pahari and composed by Shiv Hari. He had gotten a Filmfare and many more awards. I would like to say that, when I was pursuing my doctorate in music in the University of Delhi Faculty of Music and Fine Arts, I had this honor and I had this privilege of intermingling with many, many prominent and eminent artists of our country. And very many classical vocalists have said that, he had a nasal tone. But none of the artists, in spite of having a nasal tone, which is known as supposedly the avagun in the eyes of Indian classical music, no musician has been able to, take this avagun, so-called avagun, in his stride and has been able to present this avagun in such a beautiful manner that this became his hallmark. And this became his signature, that he would sing with a little bit of a nasal tone. So I have been told that, it's like adding a little bit of salt in your music. But why? Because if you don't put a little bit of a nasal tone, your voice will not sound that sweet. He has sung in very many languages across the country. And since I'm a Bengali, I would like to sing 2 lines from a Bengali song composed by Salil Chaudhary, who was another a stalwart when it comes to composition, creating the musical composition. And the song goes like this. This particular song actually goes very well with this rainy evening, because it speaks of that. It goes like this. Mon matal shat shakal keno shudhu tane. Mon matal shat shakal keno shudhu tane. Snigdhotai স্বপ্ন জাল মায়ায় কেন বাঁধে মন মাতাল সাত সকাল কেন শুধুই টানে. Thank you so much. Wow, very good, lovely. क्या बात है. Beautiful introduction. क्या बात. बहुत सुंदर. अब ओवर टू संजय जी, आप सबसे ब्रह्मा जी बोलते हैं और मैंने काफी लोगों से यही सुना कि सब यही बोल रहे हैं मुकेश जी के सबसे बड़े फैन आप ही हैं. सो प्लीज यू टेक अप एंड यू टेल अस अबाउट कि कैसे आप, हाउ डिड दिस फॉन्डनेस grew into love for Mukesh ji songs. Over to you Sanjay ji, the evening is all yours. मेरे को पहली बात तो ये मेरी खुशकिस्मती है और हम सबकी खुशकिस्मती है जो हम यहाँ जूम पे भी हैं और जो इस चीज को देख भी रहे हैं. हम सब जो पूरे म्यूजिक वरेंडा के पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सोचता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब एक साथ हुए हैं और आज मुकेश जी का 97th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मैं यही बस दुआ करता हूँ भगवान से कि 3 साल और दे देना ताकि उनका जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन है वो मैं किसी तरीके से मना सकूं.
मुकेश जी के 100वीं बर्थडे पर हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करें, ताकि ये कोविड सिचुएशन ना हो और हम एक्चुअली किसी स्टेडियम में या किसी ऑडिटोरियम में बड़े तरीके से उनका ये सेलिब्रेट कर सकें। क्योंकि मुकेश जी ऐसी शख्सियत हैं कि उनके बारे में मैं क्या कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। मैं तो जब वो गुजरे भी, तब भी मैं एक छोटा सा बच्चा ही था। मैं 8-9 साल का बच्चा था उस समय जब वो ना रहे। और मुझे वो भी याद है उस जमाने की, मुझे याददाश्त आ रही है कि जब उनका जो पार्थिव शरीर जा रहा था घर से, जब निकल रहा था, तो मैं एक वहां पे जो जहाँ से उनके घर रूंगटा हाउस से जब निकलता है तो एक ब्रिज होता है। तो ब्रिज के स्टार्टिंग में ही जो है वहाँ निपिन रोड पे एक बरगद का पेड़ होता है। मैं एक्चुअली बरगद के पेड़ पर चढ़ के उनके दर्शन कर रहा था। तो इन द सेंस कि मुझे ये पता ही नहीं था कि लेटर ऑन जिंदगी में मैं उनके गाने गाऊंगा। ये तो ऐस पता नहीं किस तरीके से ये हुआ। मैं आज सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कोई कनेक्ट जरूर होगा, कि नहीं तो एक 8 या 9 साल का बच्चा जो है वो बरगद के पेड़ पर चढ़ के मुकेश जी के दर्शन क्यों करेगा। मतलब अगर कोई फिल्म स्टार होता तो समझ में आता है ये भी। और उस वक्त में भी अगर अगर देखा जाए तो उस समय मोहम्मद रफी बहुत टॉप पे चल रहे थे। तो मोहम्मद रफी का कुछ होता तो समझ में आता है कि कोई बच्चा जो है मोहम्मद रफी के साहब को देखने उठ रहा है। मुकेश जी का जाना वो मुझे समझ में अभी भी नहीं आता है। मगर अब ये समझ में आ रहा है कि कोई कनेक्ट जरूर होगा। यस डेफिनेटली। मेरे को भगवान ने जरूर मेरे में लिखा होगा कि भैया आगे चल के तुझे मुकेश के ही गाने गाने हैं। उसमें आप एक और भी देखिए, क्या इसमें मजे की बात ये हुई कि जब मैं स्कूल में था, ऑफ कोर्स स्कूल मेरा एजुकेशन जो थी वो बहुत ही इंग्लिश मीडियम में थी, तो वहाँ अंग्रेजी गाने ज्यादा होते थे, हिंदी गाने कम होते थे। और जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे याद है कि उस जमाने उस वक्त पे 1981 की बात कर रहा हूँ। तो 1981 में कर्ज फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी और उसमें किशोर कुमार जी का गाना जो है बहुत पॉपुलर हुआ था। और वो मैंने गाया था कॉलेज में पहले साल में, और वो इतना हिट हो गया था कि मुझे लोगों ने वहाँ का कॉलेज का किशोर कुमार कहना शुरू कर दिया एंड ब्ला 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 तो एक्चुअली मेरी जो एंट्री हो गई वो क्या इस किशोर कुमार हो गई। तो मैं किशोर कुमार साहब के सारे गाने गाने लगा, स्टेज पे भी गाने लगा, लोगों ने मुझे शोज पे बुलाना शुरू कर दिया, किशोर कुमार के गाने गा रहा हूँ, ये है वो है। फिर जब उसी साल में पहली साल में जब हमारा एनुअल डे हुआ कॉलेज का, तब मेरे पल्ले पड़ा प्रिंसिपल की तरफ से एक फरमाइश। और प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि भैया ये सब तो ठीक है, तुम क्या गाते हो मेरी समझ में नहीं आता है, मगर तुमको ये गाना गाना पड़ेगा तो ही तुमको गाने दूंगा मैं एनुअल डे में, वरना तुम गाओगे नहीं। तो मैंने कहा भैया मरता क्या नहीं करता, आप बोलिए कौन सा गाना गाना है, मैं गा दूंगा। तो उन्होंने मुझे ये गाना दिया और उस दिन के बाद कोई मेरे से नॉन मुकेश का गाना सुनना पसंद ही नहीं करता है। तो ये मेरी, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी बदकिस्मती, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये चीज मिली विरासत में, कि अब लोग जो हैं मुझे मुकेश जी से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मुकेश जी को अगर सुनना हो तो संजय जी को बुलाओ। तो नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। उसके बाद जो है वो सिर्फ लोग मुझे मुकेश मुकेश, मेरा नाम ही बदल दिया था, लोगों ने मुझे मुकेश कहना शुरू कर दिया था, तो उससे भी मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। तो ऑफकोर्स चूंकि मैंने अभी ये बात कही है, तो मैं सबसे पहले एक दो लाइनें गुनगुना दूंगा उस पहले गाने की जो मेरे किस्मत में पड़ा, जिसकी वजह से आज जो मैं इतने मुझे इतनी खुशकिस्मती मिली है कि मैं इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ उठा बैठा हूँ, और मैं सबके साथ मैंने शोज किए हैं, और उन सारे शोज में मैंने मुकेश जी के गाने गाए हैं। और आप सबको बता दूं कि मैं मुकेश जी के अलावा उस दिन के बाद, और आज का दिन है, मुकेश जी के अलावा मैंने कोई गाना नहीं गाया। अगर मैं गाता हूँ तो एज अ बाथरूम सिंगर गाता हूँ, मैं बाथरूम में बैठ के कुछ भी गा लूं वो बात अलग है, मगर स्टेज पे या घर के बाहर मैं कभी भी कोई गाना नहीं गाता हूँ जो मुकेश जी का ना हो। तो मैं ये कहने को तैयार हूँ कि मुझे आता ही नहीं गाना, उसके अलावा मुझे गाना नहीं आता। हालांकि मेरी बीवी हमेशा ये कहती है क्या तुम वही वही गाने गा रहे हो पिछले 30 साल से। तो मैंने कहा 30 साल से तुम सुन रही हो एक ही एक गाने, मगर जो ऑडियंस है, जो मुझे नई नई ऑडियंस पूरी दुनिया में मिलती है, वो उस गाने को सुन रहे हैं। और मेरा हमेशा यही एक ध्येय रहा है, एक मोटो रहा है। उसके बाद मुझे शौक होने लगा
जब मैं ये मुकेश के तरीके से हर जगह मुकेश 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 बुलाते थे, तो मुझ में ये एक बड़ा एक वो आ गया, क्या हम कहते हैं जिसके ऊपर, दृढ़ निश्चय कि यार जब लोग अब सुन रहे हैं मेरे को एज मुकेश, तो मैं मुकेश जी के ही करूं ना। दूसरे गायकों की तो बहुत सारे गायक हैं जो गा रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है ओ मुकेश जी, अरे यार उन्होंने तो बहुत रोने धोने वाले गाने गाए हैं, वो पार्टी के नहीं है, वो मजा नहीं आता है। रोना धोना हो तो मुकेश जी को बुलाओ या मुकेश जी के गायक को बुलाओ। तो मुकेश जी के गाने कोई ज्यादा लोग गाते नहीं थे, क्योंकि हर एक को अपना घर चलाना रहता है, वो अपना किचन कैसे चलाएगा अगर उसे शो ही नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं ठीक है यार, हम एक दो गाने मुकेश जी के अगर फरमाइश आए तो गा देते हैं, वरना हम किशोर और मोहम्मद रफी और ये सब गाएंगे, धाम धूम जो आपसे चलता है वो गाने गाएंगे। मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैंने कभी भी, भगवान ने मुझे संगीत जो दिया है, ये गायकी जो दी है, वो मेरे को एक तरीके से हॉबी की तरह दी है। अब वो हॉबी प्रोफेशन में भी हो गई, वो बात अलग है, बड़ी चीज है। मगर मेरी कभी भी मैंने इस गाने की वजह से मेरा घर चले ऐसा नहीं था। तो मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, मैंने खुद प्रोफेशनल तरीके से काम किए हैं। तो गाना जो हो गया वो मेरा हॉबी कम प्रोफेशन हो गया, दोनों। सो दैट वाज लवली। तो आई कुड टेक दिस रिस्क एट दैट टाइम कि भैया मुझे मुकेश जी के अलावा और कोई गाना गाना नहीं है, बुलाना हो तो बुलाओ, नहीं बुलाना तो मत बुलाओ। मगर मुझे ये खुशी होती है कि आज की तारीख में भी जब मैं गाना गाता हूं तो केवल ओल्ड जनरेशन नहीं, न्यू जनरेशन भी लाइक करती है। लोग जो है, एक हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और वो आनंद जी भाई, जो कल्याण जी आनंद जी भाई हैं, आनंद जी भाई के बड़े सुपुत्र हैं। वो मेरे साथ बहुत सारी जगह चलते हैं, वो मेरे साथ बहुत सारे शोज उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ हमेशा कि उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। तो हम हमेशा ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि यार मुकेश जी का ये कहते हैं कि वो रोने धोने वाले करते हैं, तो हम क्यों ना उसको थोड़ा पैटर्न चेंज करें। आपको विश्वास नहीं होगा, सबको बताता हूं कि आज की तारीख में हमारे जब भी शोज होते हैं, दीपक आनंद जी भाई के जब भी शोज होते हैं, उसमें जो डांसिंग सेशन शुरू होता है वो मुझसे शुरू होता है, मुकेश जी से डांसिंग सेशन शुरू होता है। क्या बात है। उसके बाद जो है बाकी सब दूसरे सिंगर्स जो हैं उसके बाद आते हैं और उस चीज को आगे बढ़ा ले जाते हैं और उसको पीक पे लेके खत्म करते हैं, वो बात अलग है। मगर हमने डांसिंग, तो ये मत कहिए, कोई भी ये मन ना समझे कि मुकेश जी मतलब रोना धोना ना। मुकेश जी मतलब सोज, मतलब शांति, दिल की आवाज। और ये मुकेश जी की खासियत, मुकेश जी के गाए हुए गाने की ये खासियत है कि सारे गाने जो हैं वो दिल से होते हैं, यहाँ से नहीं। वो कभी भी कोई मुकेश जी का गाना आप यहाँ से गले से नहीं गा सकते, आपको दिल से ही गाना पड़ेगा, आपको नाभि से ही गाना पड़ेगा, तभी उसमें मजा आएगा। वरना आप तो पोइट्री गा रहे हो, किसी की लिखी हुई पोइट्री आप गुनगुना रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये है मुकेश जी। और ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि आज भी मैं जब भी मैं गाता हूं तो मुझे आगे पीछे कोई नजर नहीं आता, मैं सिर्फ दिल से गाता हूं और उनको याद करते हुए वो गाना गा देता हूं। वो गाना अच्छा होता है बुरा होता है वो तो पब्लिक जाने, पब्लिक को झेलना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा तो उसमें मुझे कोई नहीं, मगर हाँ दिल से गाना। तो मुकेश जी के गाना गाने का मतलब है पहले आपको अपनी रूह से गाना पड़ेगा, अपने दिल से आपको गाना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं गा सकते हैं। और अगर आपने रूह से गाया है तो वो थर करके जाके पब्लिक को लगता है और पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है। और मैं हमेशा अपने शो में ये कहता हूँ कि भैया देखिए, आपने अभी तक जो भी गाने सुने हैं, दूसरे सुना रहे हैं, मेरे सारे सिंगर्स कलीग्स हैं वो सब सुना रहे हैं, ये हो गई एक्सरसाइज, हो गई आपके पैरों की। लोग डांस करते हैं ना ऐसे ऐसे, पैर हाथ चलाते रहते हैं, डांस करते हैं, भंगड़ा करते हैं, सब करते हैं। मुकेश जी के गाने सुन के आप लोग एक जगह शांत पे बैठ जाइए और मुकेश जी के गानों का मजा लीजिए उसी तरीके से जिस तरीके से आप डांस का करते हैं। डांस है आपके हाथ पैर हिलाने का, मुकेश जी का गाना जो है वो आपके अंदर की नसों को हिलाना है, आपके मेंटल बैलेंस को ठीक करना है, उसको सोच बनाए रखना है, शांति बनाए रखनी है, दिल को छूना है। तो ये थे मुकेश जी। तो मुकेश जी के बारे में तो जितना कहा जाए वो तो
ऑफ कोर्स नेट पे तो बहुत कुछ हो रहा होगा, तो मैं तो देखता नहीं हूँ उस चीजों को, तो वो तो पढ़ने की बात है, वो तो लोग पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ अपने जो थोड़े बहुत इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आप लोग को शेयर कर सकता हूँ। तो वो जो एक गाना जिसने मेरे को यहाँ तक एक मुकेश के गायक के रूप में प्रस्तुत किया, मैं उसके 2 लाइनें सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी, जैसे मैंने अनिला जी आपको कहा था कि मेरे पास मेरे ट्रैक्स या ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी तरीके से प्रोफेशनल वे में गा सकूं, मगर चूंकि आज मौका ऐसा है कि उसके, अगर आज उनके लिए नहीं गाया तो फिर आप नहीं गाया। तो इसी बात पे मैं 2 लाइनें आपको उस गाने की सुनाता हूँ। गाना स्वरबद्ध किया हुआ है मेरे पिता समान आनंद जी भाई ने, कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आनंद जी भाई मेरे पिता समान हैं, वो मुझे अपना बड़ा लड़का मानते हैं, और मेरी अगेन खुशकिस्मती है कि मैं उनके अंडर में पला बड़ा, और उनके साथ अब पूरे दुनिया में शोज करता रहता हूँ, और बड़ा उनसे प्यार पाया है। तो कल्याण जी आनंद जी का रचा हुआ ये गीत और इंदिवर साहब का लिखा हुआ ये गीत, इंदिवर साहब से भी मैं मिला, उनसे भी मेरी मुलाकात थी, बहुत अच्छे आदमी, और उन्होंने जिस तरीके से ये लिखा है, ये गीत जो है ये सिर्फ इंदिवर साहब ही लिख सकते थे। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, कल्याण जी आनंद जी, इंदिवर जी और मुकेश जी, तो ये गीत जो है ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। सरस्वती चंद्र का ये गीत जो है, इस गीत ने मुझे ये मुकाम दिया कि मैं जो हूँ, मेरी गायकी जो है वो मुकेश जी से जुड़ गई, और मैंने वहां से अपना जो सिंगिंग करियर था वो शुरू किया, और आज तक मैं उन्हीं के गाने गा रहा हूँ। उनका गाया हुआ मुझे एक जो पहला गीत है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वो गीत से शुरुआत अभी करूं, और फिर मैं मधु जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो फिर मुकेश जी का गाना पेश करें, और बाकी सब हम सो हैं वो फिर उसमें बातचीत करें और आगे इस कार्यक्रम को ले जाएं। वो गाना जो सबसे पहला फिल्मी गाना मुकेश जी का है, वो गाने की कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि उनका पहला गाना कोई गाए आज के शो में। दिल दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। वाह संजय साहब, बहुत खूब। वंडरफुल संजय, बहुत 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 उम्दा, और जो भी आपने बताया इतना सुंदर विवरण था, और मुकेश जी के बारे में सच में हमें बहुत कम नॉलेज थी अभी तक, लेकिन आज हम लोग बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे अब? अनिला 1 सेकेंड, मधु जी आपसे माफी चाहती हूँ, 1 मिनट, मैं एक बात कहना चाहूंगी। ये जो आपने गाया संजय जी, आप मुझे सुन सकते हैं? दरबारी कानड़ा का इतना सुंदर स्वरूप,
ये जो बहुत सारे नि सारे धा अंदर एकदम खरज में जा रहा है। देखिए इतना कितना खरज में जा रहा है। सुंदर, अनिल इतना सुंदर। बिस्वास जी का ये गाना Yes, पहली नजर का आपको जी मजा। आपको मैं एक और बात बताती हूँ। मैं स्पीक मेके के लिए काम करती थी कॉलेज में, और हमारे कॉलेज में पंडित रविशंकर जी आए थे एक बार। तो उन्होंने कहा था हम लोगों से, प्रोग्राम हो जाने के बाद हम लोग कह रहे कि हमको भैरवी भी सुनना है। तो हमको कहा कि देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक अलग सी चीज सुनाता हूँ। वैसे तो अच्छा भैरवी में हम लोग सितार में भवानी दयानी सुनने के आदि है, हर जगह भवानी दयानी बज जाता है, भवानी दयानी, ठीक है। उन्होंने मुकेश जी का गाया हुआ उनका कॉम्पोजिशन था, या हाँ जरत दिन रैन, हाँ राग भैरवी में हाँ बजाया, और घाट भी भैरवी, और बिल्कुल सदाबहार की तरह, क्योंकि उसमें सारे स्वर उन्होंने डाले थे। और क्या he told us that nobody could have had done so much of justice apart वाह from him, वाह क्योंकि he took God knows how many days. तो he was like, मुकेश जी आप आके गा दीजिए, रिकॉर्डिंग कर दीजिए। नहीं पंडित जी, I want to do justice, मुझे और करेक्ट वक्त दीजिए, मैं यस इसको और यस अच्छे से। बिकॉज ही वाज अ परफेक्शनिस्ट, मतलब इन द सेंस कि उनको ये भी Yes, लगता था, क्योंकि सब लोग कहते थे कि वो उसमें थोड़ा उनका सुर कम लगता है या ये लगता है, and तो very वो बहुत कॉन्शियस kind होते थे। hearted. Yes, यस he said कि जो स्वर होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, उनको करेक्ट प्यार करेक्ट से अलग अलग, प्यार you से प्यार cannot से be unkind to kids. नो यू कांट उनको सजो के रखना पड़ता है आप। Yes, या thank संजय you जी, so much. before मधु मुकेश जी स्टार्ट्स, उनके मुकेश जी का पर्सोना कैसा था? वो बहुत संजीदा किस्म के इंसान थे या किस तरह के इंसान? मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ जी संजय जी, थोड़ा सा अरे आप नहीं, अब तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो उनसे मिला नहीं, मेरे को इस सौभाग्य नहीं था कि मैं उनसे मिलूं, तो मैं उस बारे में नहीं, मगर हाँ चूंकि मैं उन सब से मिला जो भी जिन्होंने मुकेश जी के साथ काम किया, कल्याण जी आनंद जी से हो गए, या नौशाद साहब हो गए, या खयाम साहब हो गए, तो सब लोगों ने मुझे ये उनके बारे में कहा कि वो इतने सीधे साधे इंसान थे, जिसको कह सकते साफ दिल के इंसान थे, कि उस जैसा कोई इंसान हो नहीं सकता। और इसी वजह से, जैसे लता जी ने मुझे बताया, लता दीदी ने तो उनको अपना भाई माना था, उनको भाई Yes. अपना माना हुआ है। तो लता जी ने भी यही उनको कहा कि मुकेश जी, मतलब मुकेश भैया जो हैं वो इतने सीधे भोले जिसको कह सकते हैं ना, तो मैंने सिर्फ लोगों से सुना है, और वो सुनकर ही मैं अपने आप में उसमें अपने आप को ढालना चाहता हूँ कि जैसे वो इतने अच्छे थे, और जैसे वो इतने भोले थे और लोगों का भला करते थे, वो काफी लोगों का भला करते थे। कोई आया पैसे दे दिए, कोई आया कुछ दर्द कर दिया, उन्हें ये सब चीजों का कोई नॉलेज नहीं होती थी। तो ये आनंद जी भाई ने मेरे को कितनी स्टोरीज बताई हैं, लता दीदी ने मेरे को कितनी स्टोरीज बताई हैं। तो एज सच, एज अ पर्सना, ही वॉज, जैसे मैं सबको कहता हूँ, मैं ये नहीं सिर्फ मुकेश जी का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे सिंगर्स को, सारे संगीतकार को और सारे गीतकारों को, मैं इन सबको देवदूत मानता हूँ। सारे आर्टिस्ट जो हैं, चाहे म्यूजिशियंस हों, संगीतकार हों, गीतकार हों, सिंगर्स हों, सारे एक्चुअली देवदूत हैं। ये भगवान से भेजे, हम सब जो भी हैं, जो गाते हैं, थोड़ा भी गाते हैं तो भी हम में थोड़ा अंश है भगवान का। तो हम इन सारे देवदूतों को जो हैं, हमको इनको सबको ठीक तरीके से देखना चाहिए, उनको भली नजरों से देखना चाहिए। उनके अगेंस्ट कुछ इंसानी तौर पर जो हम इस तरीके से करते हैं, इसको काटो उसको काटो, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारे देवदूत हैं, उसमें मुकेश जी तो और ही एक और बढ़ चढ़ के देवदूत जिस तरीके से मुझे बताया गया जाता है, तो वो तो अलग ही किस्म के थे, तो वो देव थे। तो ये जो मुझे बताया गया है, वरना मैं तो मिला नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। और उनके सारे गानों से उनकी शख्सियत का रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मधु मुकेश, और उसके बाद गौरव आप तैयार हैं, फिर दीपक और सीमा जी आप। संजय सर, आपकी और मेरी स्टोरी काफी कुछ सिमिलर है। मैं भी प्रोफेशनली जो सिंगर नहीं हूँ, शौकिया हूँ और बिजनेसमैन हूँ। और जैसा आपने बताया कि आपने परफॉर्म किया, और आपको तो ये मधुसूदन खंडेलवाल मेरा एक्चुअल नाम है, मधु मुकेश मैंने ऑडियंस ने ही मुझे नाम दिया है ये। और हाँ, तो प्लीज, और ये सलील चौधरी साहब का जैसा कि महाश्वेता जी को पसंद था,
गाना ले रहा हूँ मैं आनंद फिल्म से, क्या बात, अनिल चौधरी का लिखा हुआ, क्या बात। मुकेश जी का बहुत बेहतरीन सॉन्ग। योगेश जी का लिखा हुआ गीत है ये। हाँ योगेश जी का है, बराबर सही। अच्छा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह 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 वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत। और अब मैं गौरव भारद्वाज जो म्यूजिक वेरांडा के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इनका कैची बैंड है और ये बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है जो नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काफी गाते हैं। सो वेलकम गौरव भारद्वाज एंड ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन। और संजय जी वेलकम टू म्यूजिक वेरांडा। और थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। संजय जी कुछ बोल रहे थे कि मुकेश दा के ना गाने नहीं गाते जनरली। सच बताओ तो मुकेश दा के गाने बहुत मुश्किल हैं, सब लोग वो गाना नहीं जाते, अवॉइड करते हैं somehow. It's very tough, for tough deal to बहुत sing. डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। It's really very tough deal to sing, क्योंकि दिल से गाना जो होता है ना गायकी सब लोग नहीं कर सकते, मुंह से गायकी कर सकते हैं, पेट से गायकी कर सकते हैं, तो सब लोग कहते हैं यार छोड़ो यार इतने में काम निकल गया, छोड़ो मुकेश दा की। बस 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 बस, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, तो हालांकि मैं ऐसा सिंगर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज्यादा वैसा मुकेश दा के गाने नहीं गाता हूँ लिटरली, बट मुझे बाय हार्ट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो कहते हैं ना गायकी, अगर गायकी देखें तो बहुत बारीकियां हैं, सांस कहाँ तक छूटनी है, कैसे छूटनी है, बड़ा खतरनाक खेल है उनका, बहुत बहुत। अब जैसे वो तौबा ये मतवाली नार, एग्जैक्टली तौबा ये मतवारी एग्जैक्टली वो गाना आनंद जी भाई का है, कल्याण जी आनंद जी का, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कहाँ कहाँ सांस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अगर आपने वहां छोड़ दिया तो गाना खत्म, आप गा ही नहीं सकते आगे। एग्जैक्टली तो ये जो खूबसूरती से मुकेश जी ने किया है वो तो वाह। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, मुकेश जी का गाना सिर्फ गाना नहीं है, बहुत ही कलाकारी से जब तक आप उसे नहीं गाएंगे और बारीकी से नहीं गाएंगे तब तक वो लोगों को नहीं टच करेगा। और एक बात जो मुझे जो लगती है, जो मुकेश दा है हमारे, तो कुछ लोग ना कहते हैं भगवान ने बस उन्हें भेजा होता है कि भाई ये म्यूजिक होता है, इस टाइप से ये म्यूजिक होता है, इसको करो और रोटी कमाओ, तो somehow he is the father of music, I can say. करेक्ट। To be very frank, जो मुझे लगता है, तो एक गाना है अनाड़ी मूवी से गाना है ये, क्या मेरे को मुकेश दा के बड़े अच्छे गाने मुझे बड़े पसंद है, मैं गाता भी हूँ जनरली। तो अच्छा नहीं गाइए, आज के दिन तो ये कलाकारों का दिन है।
तो मैं कोशिश करता हूँ, एक गीत है किसी की मुस्कुराहटों पे। क्या बात है, क्या बात। Here you go. Hope you gonna love it. Here we go. किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द न सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का कदर नहीं सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, जीना इसी का नाम है। Next time, I love it. Thumbs up. रिश्ता दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। मर के भी किसी को याद आएगी, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएगी, कहेगा फूल हर गली दीवार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द दिल के दिले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Oh, thank you. Thanks, buddy. Thank you. वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वेरी गुड। मैं बहुत टाइम बाद मैंने कोशिश करी है मुकेश दा के गाने। अब हम तो नए गाने गाते हैं जनरली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो काम है, तो वो भी गाने के पड़ेंगे। बट पसंद तो है ही नहीं, बहुत खूब। और यही जिंदगी का, देखिए हर गाने जो मुकेश जी के होते थे ज्यादातर वो एक कोई मैसेज देते थे, तो इतनी अच्छी तरीके से गाया जाता था। ऑफ कोर्स मैसेज तो है, वो तो जिस राइटर ने लिखा है उसने लिखा है बहुत सोच समझ के, मगर उसको कम्युनिकेट करना जो होता है एक सिंगर का काम, वो कम्युनिकेशन मुकेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया। और इस वजह से ये देखिए ना, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, ये जो मैसेज दिया है इस गाने में, और जिस हिसाब से पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो जाती है शोज में, मैं जीना इसी का नाम है ये वाला जो फ्रेज है, ये मैं नहीं गाता हूं किसी शो में, ये पब्लिक को गवाता हूं, उसमें पब्लिक गाएगी। और जो उसका साउंड होता है ना सारे लोगों का, कोरस का गाना, पब्लिक के कोरस का गाना, दैट इज रियली एग्जैक्टली नेक्स्ट लेवल नो डाउट, नेक्स्ट लेवल। सो दैट इज हाउ वी डू दैट। और ये गाना ऐसा है कि मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं सुना हो, चाहे वो बच्चा होगा या बड़ा होगा, ऐसा कोई भी जो ये गाना नहीं गाता होगा। नहीं, और इसमें हम लोगों को डांस करवाते हैं, इसमें ये वॉल्स है, ये वॉल्स है,
तो इसमें हाँ, तो इसमें हम डांस करवाते हैं लोगों को, और इसमें कपल्स आ जाते हैं स्टेज पर. तो यू नो दिस इज हाउ इट इज नॉट दैट इट्स जस्ट एन ओल्ड सॉन्ग, इट इज आल्सो अ न्यू सॉन्ग. एग्जैक्टली. अ सॉन्ग इज सपोज्ड टू बी एंजॉयड. ओल्ड न्यू कुछ नहीं होता. करेक्ट. परफेक्ट अनिला जी. Wonderful. Thank you God. Thank you Sanjay for that insight. और ये गाना बहुत ही हम सबके दिल के बहुत करीब है और बहुत इंस्पायर करता है. और अब दीपक जी और सीमा एक अलग रूप पेश कर रहे हैं मुकेश जी का. Yes, over to you Deepak and Seema ji. थैंक यू सो मच अनिला जी. नमस्कार संजय जी, एक बार फिर से नमस्कार. स्वागत है म्यूजिक नमस्कार. वरांदा में. और मैं पहली बार मुकेश जी का गाना आज गाने वाला हूँ आपके सामने, गुस्ताखी माफ. अरे नहीं, क्योंकि बिल्कुल. मेरी जो थोड़ी सी जो सुनने में आया, लोगों ने बताया कि मेरी जो वॉइस क्वालिटी है वो किशोर कुमार से करीब करीब 5% मिलता है. सो मैं कोशिश करूँगा और हम लोग डुएट करेंगे विदाउट म्यूजिक, ठीक है. और ये जो मूवी है, जो गाना है, वो गाना है क्या खूब लगती हो, और फ्रॉम द मूवी धर्मात्मा. फिरोज खान. जी. सो सीमा जी, आप रेडी हैं? आई एम रेडी. बहुत, थोड़ा वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा. तो वी हैव मुकेश जी एंड कंचन जी. कंचन जी ने गाया है ओरिजिनल. एग्जैक्टली सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सीमा जी. गुड इवनिंग. बहुत बेहतरीन गाना है ये. जी. सो जस्ट फ्यू सेकंड्स प्लीज. सीमा जी रेडी? जी आई एम रेडी. ऑलराइट. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो. फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है. जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो. तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक. मेरे सीने में सांस रहेगा जब तक, कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में. सूरज होगा जब तक नील गगन में. फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है. जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया सीमा जी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसमें आपको एक बात बताऊं, जब ये गाना कंसीव हुआ था तो कल्याण जी आनंद जी ने, अब ये जो कंचन जी थी वो नई सिंगर थी उस टाइम पर, तो ऑब्वियसली जो ये है ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना बस अच्छा लगता है. ओ ये ओ जो है, ये कंचन जी के लेने के बजाय कल्याण जी आनंद जी ने ये कहा कि मुकेश जी आप लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है. तो इन सब चीजों को ध्यान रखते थे कि कौन जूनियर सिंगर है, अभी अभी आया हुआ है, प्रॉब्लली वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उनको इजी दीजिए. और देखिए इट इज, ये गाना ऐसा है कि इट इज लाइक अ नर्सरी राइम. फिर से कहो कहते रहो, यू नो, इट्स लाइक अ पोइट्री. मगर पोइट्री को कितनी अच्छी रूप में ढाल दिया है गीतकार, संगीतकार और सिंगर ने मिलकर, इसका मजा ही कुछ और है. देखिए अब ये गाना तो ऐसा लगता है कि इट इज समथिंग सो हैप्पी. तो ये सब चीजें उस जमाने में होती थी. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू. That's so beautiful, very nice. और संजय जी, जैसा कि आप
बहुत सारे म्यूजिशियंस परफॉर्मर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं और आप कॉपीराइट कंसल्टेंट, तो कुछ जाते जाते कुछ इफ यू हैव सम एडवाइस टू आवर परफॉर्मर्स सिंगर्स या कुछ इंस्पिरेशन आप देना चाहेंगे हमारे सारे म्यूजिशियंस को? मैं खुद सबसे इंस्पायर्ड हो रहा हूँ। गौरव जी हैं, दीपक जी हैं, सीमा जी, मुकेश जी हैं, तो सभी से इंस्पायर्ड मैं होता हूँ, तो मैं क्या कोई मैं कहाँ से इंस्पायर करूंगा। मगर हाँ, इतना जरूर है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी चीज से निराश ना हो, लेट देयर बी पॉजिटिविटी एंड लगे रहो मुन्ना भाई टाइप्स, यू नो, लेट अस नॉट फॉरगेट। ऑडियंस आती है, ऑडियंस जाती है, अगर आपको 10,000 तालियां मिलती हैं तो 5,000 गालियों के लिए भी आप अपना कलेजा तैयार रखिए। तो हर हमेशा ये नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए अरे मैंने तो अच्छा गाया, आपने अच्छा गाया, मगर ऑडियंस उस टाइम की, उस वक्त की और उस शो की ऑडियंस कैसी है, उनका मानसिक संतुलन उस समय कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका गाना आपने अच्छा गाया होगा मगर उस समय अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इसको लेके हुए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। गला नहीं ठीक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइए, बिकॉज आपका काम है गाना, गाइए और लोगों का मनोरंजन करिए। यही बात कहकर मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। एक मिनट में आपका इंट्रोडक्शन हमारे गुरुजी है, जयेश गुरुजी, जो कि हाँ गुरुजी ये कुछ बहुत मुकेश जी को बहुत पसंद करते हैं और बहुत जानकारी है उनको मुकेश जी के बारे में। क्या गुरुजी नमस्कार, रिक्वेस्ट करूंगी कुछ बोले। सबसे पहले मुकेश जी को हैप्पी बर्थडे, आज उनका दिन है, उनको तो सदा याद रखा जाएगा सदियों पीढ़ी तक। और संजय जी सबसे पहले आपको नमस्कार कि म्यूजिक वेरेंडा प्लेटफॉर्म पे आप आए और मान सम्मान बढ़ाया आपने। और अनिला जी को धन्यवाद, इतने बड़े हस्ती को हम बुला रहे हैं टॉक सेशन में, बड़े बड़े, ये तो मान सम्मान बढ़ा दिया आपने म्यूजिक वेरेंडा का। और भविष्य में भी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप ऐसे ही आते रहेंगे, अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे, ठीक है। और ये क्या है कि अब आजकल नए जनरेशन में बहुत कुछ खत्म होता जा रहा है, ठीक है, इसलिए ओल्ड इज गोल्ड। तो नए चीजें, जो पुरानी चीजें हैं, ये लोगों को शेयर करना है। और इसमें क्योंकि अब देखिए बूढ़े लोग तब जा रहे हैं दुनिया से, हम लोग भी कितना दिन रहेंगे, एज हो गया है, ठीक है, तो कुछ दे के चले जाए यंग जनरेशन के लिए। गौरव जी सब यंग जनरेशन है, अभी नए नए बच्चे गा रहे हैं इसमें, तो इन लोगों को भी देना है आने वाले उसके लिए। क्योंकि अब तो गाने, अगर 10 गाने आज कंपोज हो रहे हैं तो 2 गाने सुनने लायक होते हैं, 8 गाने आप नहीं सुन सकते, बहुत कम कंपोजिशन बनते हैं। तो उस टाइम में जैसे लिरिक्स लिखते थे वैसे ही गाना कंपोजिशन हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात क्या है, कंपोजिशन से ही नहीं होता है संजय जी। और बहुत अच्छा गाना लिख दीजिए, वो गाने वालों पे डिपेंड करता है कि वो गाना का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। उस समय में क्या होता था कि कंपोज किया, मुकेश जी आप कैसे गाएंगे, आप उन पे, रफी साहब कैसे गाएंगे, उन पे डिपेंड करता था वो गाना कैसे साथ, जैसे कि राग यमन हो, राग दरबारी हो, राग उन्होंने किसने शिवरंजनी हो, जो जिन्होंने गाया कितनी सादगी से गाया, लगता ही नहीं था कि टेंशन में गा रहे हैं, कितने आराम से गा रहे हैं, ठीक है, इतनी सादगी के साथ गा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने शायद मुकेश जी के गाने में एक सबसे बड़ी खासियत थी मेलोडियस, क्या मीठा गाते थे वो, जबरदस्त मीठा गाते थे। मैं इनका बताऊंगा, जो कुछ पार्ट थे गानों का जो लग रहा था कि मुकेश जी के लिए ही बनाया ये गाना, लिरिक्स जैसे लिखा लगा जिसे उन्हीं के लिए, भगवान ने उन्हीं के लिए बनाया, कोई नहीं गा सकते थे। अगर वो गाना किसी और को देता तो नहीं हो सकता था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए। इस लाइन से शायद जय जी का कनेक्शन हो गया है। पार्ट मुकेश जी ने गाया है, वो शायद मुकेश जी के लिए ही, शायद वो याद है घूंघट उठा रहा, ये जो उन्होंने गाया है, जैसे इसी राग में, राग यमन में, आंसू भरी ये जीवन की राह, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी। चाहे आप शिवरंजनी देख लीजिए, जाने कहा सरेगा पधा सदा, दोनों रागों का गंधार का इसमें जो एक मेलोडियस पार्ट है, क्या मुकेश जी ने इसको निभाया।
बस गए वो दिल कहते थे ये जो पाती कितनी और कितनी सरलता से गाया। कितने से और इतने बढ़िया स्वर दिखाया शिवरंजन लगा कि पूरा राग शिवरंजन ही चल रहा है। गाना गा रहे हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, लग रहा है कि राग शिवरंजन ही चल रहा है। मतलब आश्चर्य है। उस समय जो कंपोजिशन, एक तो पहली बार जमाने में कंपोजिशन बहुत अच्छा हुआ करता, रागों का बड़ा ध्यान रखते थे। अगर कोई राग है शिवरंजनी में और कोई नोट्स अगर लगा दिया अलग से, तभी राग की मौलिकता नहीं खत्म हुआ करती थी। राग यमन, राग शिवरंजनी, राग दरबारी, हर एक राग में कंपोजिशन में अच्छे अच्छे गाने। रोटी कपड़ा और मकान में मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को मैं ना भूलूंगा। ये जो मेलोडी पार्ट था उनका, मैं ना भूलूंगा, बिल्कुल मैं ना भूलूंगी। ये जो म्यूजिक बनाया जबरदस्त जबरदस्त मेलोडी पर डाला, जैसे गाना वैसे म्यूजिक कंपोजिशन में। तो ये म्यूजिक कंपोजर उस जमाने में जो है वो गायक को मद्देनजर रखते हुए गाना बनाते थे, इस वजह से वो तालमेल बनता है। आजकल क्या है, आजकल जो है एक म्यूजिक डायरेक्टर होगा तो वो कहता है अरे यार अरिजीत को बुला लो, अरे अरिजीत नहीं मिल रहा है, अच्छा फलां को बुला लो, अच्छा वो नहीं मिल रहा है, अरे यार ये क्या, ये गाना है ये क्या है। तो ये उस समय नहीं होता था। उस समय अगर एक गाना अगर शंकर जयकिशन ने मुकेश जी के लिए बनाया है तो वेट करेंगे मुकेश जी के लिए, 2-3 महीने तक वेट करेंगे। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय में क्या होता था संजय जी, मैं जहां तक मुझे यूट्यूब पे मैंने देखा है उनका स्टोरी, जैसे मनाडे साहब को बोला कि ये गाना गाओ, कहते मनाडे बोलते थे कि नहीं ये मेरे से मत गाओ ये गाना, क्योंकि ये किशोर जी अजह गाएंगे या रफी साहब गाएंगे, ये गाना मेरे बस की नहीं है, ये इससे गाओ, वो ज्यादा अच्छा गाएंगे। और आज होता था ये स्पीड होता है, वो आज नहीं है, वो आज नहीं है, वो आज नहीं है। आज कट थ्रोट कंपटीशन। हाँ, काट के किसको देना चाहिए। अब मेरा गाना गौरव जी को दे देंगे, गौरव जी को काट के कहीं और को दे देंगे, उनका गाना काट किसी और को देंगे, पता लगा कि गौरव जी का रिकॉर्डिंग है, कल उनका गाना नहीं किसी और का गाना आ गया उसमें। तो आप तो इस तरह से होता है। उस समय में क्या होता था कि ये गाना किस पे शूट करेगा, कहते और उस टाइम कहते कि गाओ, कितना अच्छा गा सकते हैं आप। तो मुकेश जी गाना बड़ा सादगी, आप नेचर से भी बहुत अच्छे थे मुकेश जी, मैंने पढ़ा है मैं। और मैं उस टाइम बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था मैं, आज से नहीं, जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था उससे भी पहले मैं बच्चों से ही मुकेश जी का गाना रवि गाना गाता था। जैसे उनका ये गाना देखिए, किस मूड का गाना नहीं गाया, देखिए सैड हो, रोमांटिक हो, हर तरह के। चांद की दीवार न तोरी प्यार भरा दिल, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छू दिया, चांद की दीवार तोरी प्यार भरा दिल, सधनी रे सधनी। आपको बताऊं कि ये ज्यादातर लोगों को शायद पता हो, मगर आपको ये बताऊं कि मुकेश जी का जो गाने का जो होता था वो हमारे क्रिकेटर्स में इतना होता था उस जमाने में। अगर आपको कई लोगों को पता होगा कि बॉलर हुआ करते थे भगत चंद्रशेखर, अपने थे ना चंद्रशेखर जी। तो वो चंद्रशेखर जी जो हैं वो अगर बॉलिंग करने के टाइम पे मुकेश जी के गाए हुए गाने गुनगुनाते थे। जी। और उनसे उनका देखा देखी गुंडप्पा विश्वनाथ ने भी चालू कर दिया था जब वो करते थे फील्डिंग। तो वो मुकेश जी के गाए हुए गाने वो करते करते फील्डिंग कर रहे हैं, करते करते बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये प्रभाव होता था। तो स्पोर्ट्स में भी उनपे प्रभाव हो गया था मुकेश जी के गानों का उस टाइम पर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है मुकेश जी का बेस कितना अच्छा था। जैसे उन्होंने गाया चांद की दीवार न तोरी प्यार भरा दिल, प्यार अंदर जा रहा है। हाँ देखिए रे रे गा रे सारे में सधनी मा पद नी प म प ग म रे नी सा रे गा। क्या बात, रे सारे में सधनी। ये जो उन्होंने राग को जो क्षमा बांधा है, दैवत का जो आंदोलन है गंधार का दरबारी का, क्या रागों में उन्होंने
दिल जलता है। उसमें एक इस तरह के, जैसे उसमें कई पुराने गाने हैं, लेकिन मुझे याद है बहुत पुराने गाने हैं उनके बेस वाले, बहुत अच्छे से गाने गाए हैं। तो मुकेश जी से ही संभव था, और ये किसी से संभव नहीं था। और मैं संजय जी, आपने तो आज यहाँ आके ना धन्य कर दिया, और अनिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ के मान सम्मान बढ़ाइए, हमारे म्यूजिक बैंडा को अच्छे लेवल पे आप लोग योगदान दीजिए, अच्छे लेवल पे जाए, आप इनको शेयर कीजिए, सबको बताइए। मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ, आप बार बार आइए, हाँ, और यहाँ पे सभी को आशीर्वाद दीजिए। और ये परिवार आपका बच्चा है, और अपना सारे स्टोरी को शेयर कीजिए, ताकि आने वाली यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो ये संगीत लुप्त हो जाएगा, संगीत खत्म हो जाएगा। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता जी, ये पुराने पड़े। हम लोग क्या कर रहे हैं आप म्यूजिक बैंडा में, जो दबे हुए राइटर्स, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, कहीं ऐसे लोग जिसका नाम ही नहीं आता है, ठीक है ना, राइटर के नाम नहीं आते कहीं बार, तो हम चाह रहे उन सबको म्यूजिक बैंडा में, हम अनिला जी से कहते हैं सबको लेके आइए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे आप लोगों से, आपके जो गैदरिंग है उससे जुड़ा हूँ। इसमें मैं आपको एक बहुत, आप चूंकि अभी आपने ये पॉइंट उठाया है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 30 साल से केवल कलाकारों का सेवा कर रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये मुझे दायित्व सौंपा भगवान ने, कि मैं हर आर्टिस्ट के हक की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं उनके हक का लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी जी जी। मैंने 1990 में शुरुआत करी थी संगीतकार और गीतकार के रॉयल्टीज की। तो अगर आप लोगों ने आजकल जो नाम सुनते हैं, गौरव आपने सुना होगा, क्योंकि आप इसमें अगर आप डेली गा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि IPRS से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो IPRS मैंने ही बनाया। बड़ा दिक्कत होता है। नहीं, तो वो IPRS मैंने ही बनाया है, मैं आपको बता दूं। हालत खराब है। नहीं, तो अभी फिर हालत खराब है। तो मैंने 1990 में संगीतकार और गीतकार के लिए ये हक की लड़ाई लड़ी थी, और ये IPRS मैंने बनाया था। क्योंकि क्या होता है कि संगीतकार और गीतकार जो है वो इतनी मेहनत करता है, गाना एक दिन में नहीं बनता है, सदियां लग जाती हैं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और जो है लोग जो हैं, कोई भी हो, जो है चाहे सिंगर हो या कोई भी हो, उससे पैसा कमाते हैं, उनकी रचनाओं से पैसा कमाते हैं, उसकी रचनाओं से बिजनेस होता है। तो मेरा ये कहना है, हर एक आदमी को वो गाने पे धंधा करना या बिजनेस करना अलाउड है, उसको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मगर ये हम में से हर एक का दायित्व बन जाता है कि उसमें से थोड़ा शेयर जो है वो हम संगीतकार और गीतकार जो उसके रचयिता हैं उन तक पहुंचाएं। तो ये रॉयल्टी होती है। तो ये रॉयल्टी दिलाने का कार्य जो है मैंने 1990 में शुरू किया था, और अब जाके IPRS ऐसी जगह पे आई है। ऑफ कोर्स उसमें भी थोड़ी गड़बड़ें हो रही हैं, मैं अब हूँ नहीं वहाँ पे, मैं नहीं हूँ वहाँ पिछले 15 साल से, तो वहाँ काफी आ जाओ, बड़ी दिक्कत हो रही है हमें। तो अब मैंने क्या किया था, मैंने जब 1990 में ये शुरुआत की थी, साथ में मैंने गायकों के लिए भी लड़ना शुरू कर दिया था। तो मुझे 1991 में लता जी, मैं, सोनू निगम जी और अलका याग्निक जी, हम चारों ने मिलकर 1991 से लड़ना चालू किया कि जिस तरीके से संगीतकार और गीतकार को रॉयल्टी मिलती है, उसी तरीके से गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और आपको मैं खुशखबरी ये देता हूं कि 30 साल के बाद 2012 में हम ये कानून पास करवा के लाए पार्लियामेंट से यूनानिमसली। पहली बार काफी सदियों बाद पार्लियामेंट ने यूनानिमसली कुछ चीज अग्री करी है, ये तो हमेशा झगड़े होते हैं। इस बात पर पार्लियामेंट ने यूनाइटेडली इसको पास किया, ये लॉ को, कॉपीराइट लॉ को। तो 21 जून 2012 से सारे सिंगर्स, भारत के सारे सिंगर्स को रॉयल्टी मिला करेगी जहां भी उनका गाना कॉमर्शियली कहीं बजेगा। तो अगर आज, तो अब मैं उस संस्था जिसको हम ISRA कहते हैं, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन, जैसे IPRS संगीतकार गीतकार के लिए, सिंगर्स के लिए ISRA है, ISRA। तो अब मैं ISRA का CEO हूँ। IPRS से मेरा कोई अभी लेना देना नहीं है, मैं उसमें था, मगर मैं उनको हमेशा देखता हूँ, वो भी मेरे बच्चे ही हैं। अभी लीगल है सर वो? हाँ, लीगल है अभी। हालांकि आज की तारीख में, आज जैसे हम अभी बैठे हैं, एक पूरा आग लगी हुई है भारत में, पूरे भारत में, क्योंकि IPRS ने कोई नया कोई टैरिफ बनाया हुआ है
कि अगर आप जैसे अभी बैठे अपने हारमोनियम लेके गुरुजी आप गा रहे थे, तो पता है आपको उनको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। सही बात है। हाँ जी। तो आज पिछले 1 हफ्ते से मैं वो लड़ाई में लगा हूँ कि कैसे गायकों को और सब जितने भी उसके गाने के जो तरीके से हम मजे लेना चाहते हैं, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से वो हम कर सकते हैं बगैर इन चीजों के। तो उस पे मैं लड़ रहा हूँ। तो अभी मैं फिलहाल जो है लड़ाई जो है वो सिंगर्स के लिए लड़ रहा हूँ कि सिंगर्स को उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और भगवान की कृपा से सारे सिंगर्स जो हैं, ज्यादातर सिंगर्स जो हैं वो अब इस इसरा के मेंबर हैं। और मैंने अभी तक पिछले 3 से, अभी हम लोग 2013 में पैदा हुए थे इसरा, क्योंकि 2012 में लॉ आया है, 2013 में हम पैदा हुए। और उसके बाद ये हमारी खुशी की बात है कि हमने अभी तक ऑलरेडी 3 करोड़ रुपए गायकों में बांटे हैं। सिर्फ हमने कलेक्ट नहीं किए मगर हमने बांटे भी हैं। तो अब हमारी चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन एमेरिटस जो है वो लता जी हैं, अनूप जी उसके प्रेसिडेंट हैं, मैं सीईओ हूं, और फिर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे लोग हैं, चाहे वो एसपी बालासुब्रमण्यम जी हों, अलका याग्निक जी हों, हरिहरन हों, कुमार सानू हों, उदित नारायण जी हों, सारे नाम जो दशान जी हैं, सोनू निगम है, सुरेश वाडकर जी हैं, सारे लोग हम हैं जो अब इस चीज को ले रहे हैं। तो सारे कलाकारों के लिए जो है ये लड़ना बहुत जरूरी है, जिसमें मेरी खुशकिस्मती कि मुझे ये मौका मिला, भगवान ने दिया कि मैं ये कलाकारों का सेवा कर सकता हूँ। सर संजय सर, लेकिन जैसे आईपीआरएस है आपने बताया, तो मैं तो मेरे तो शोज काफी पंगे हुए हैं आईपीआरएस की वजह से। सर बता रहा हूँ, आपको तो पता है, आपको क्या बोलना है, चीज बताइए आपको। बड़ा दिक्कत होता है, 5 स्टार्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है इसका, कॉर्पोरेट शोज में बहुत दिक्कत रहता है। तो अब इसमें सर आपको ये नहीं लगता कहीं मिसयूज भी कर रहे हैं लोग इसका? नहीं, आईपीआरएस में जो अभी जो मिसयूज हो रहा है वो इस चीज का हो रहा है कि सबसे पहली बात तो जो आप रेट लगाते हैं किसी भी शो का, वो गलत है। वो रेट जो है वो इतना ही होना चाहिए कि थोड़ा होना चाहिए, इतना सा। रेट का मतलब पेमेंट नहीं होता है, रॉयल्टी का मतलब छोटा होता है, रॉयल्टी का मतलब पेमेंट नहीं होता है। करेक्ट सर। अगर पता लगा सिंगर को ही 10,000 रुपए मिल रहा है और तुम बोल से मांग रहे हो 40,000 रुपए, तो कहां से लाके देगा? तो पंगा तो वहीं शुरू हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि जैसे पूरे दुनिया में है, ये कोई नई चीज भारत में हो रही है ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रही है और भारत में भी होना चाहिए, भारत के कलाकारों के लिए भी होना चाहिए, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। तो मगर जैसे दुनिया में होता है कि अगर आपका कोई शो हो रहा है तो आपका जितने भी शो का खर्चा है या उसका टिकट है, उसका 3% आप दे दीजिए आईपीआरएस, वहां के उस कंट्री के आईपीआरएस। तो अगर इंडिया में भी ऐसे करें तो सब लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत का काम नहीं है। अब यही अगर आप बोलें कि इसका 3% के बजाय आप 70% दे दो, तो कोई नहीं देगा भाई। सर मैं बता तो रहा हूँ, इतना सफर किया, 1.5 लाख रुपए का प्रोग्राम होता है तो 35-40 हजार तो आईपीआरएस मांग लेते हैं। क्लाइंट कहता है कि 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर वो कहते हैं, फिर वो करते हैं, आपको बताऊं मैं, आपको बड़ा वो झोल झाल करते हैं अंडर द टेबल, यार तू रख ले अपने बच्चों के लिए रख ले, और ये मिठाई के लिए रख ले, और ये रख ले, वो रख ले। तो ये पहले पीपीएल ने बड़ा पंगा किया सर, पहले पीपीएल ने परेशान कर रखा था। खैर अभी इतने आज ये म्यूजिक वरेंडा में इतने म्यूजिकल बात हो रही है, अभी अनम्यूजिकल बात ना करें तो हम वापस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। मैं ना सर पीड़ित हूँ इसलिए आपने। अच्छा, मैं संजय जी में एक चीज और बात करना चाहूंगा आपसे। हाँ जी। मैं चूंकि म्यूजिक बैंडा का मैं मेंटोर हूँ, मैं गुरुजी हूँ, मैं सब बच्चों को ट्रेंड करता हूँ यहाँ पे। अरे क्या बात है, वाह। और यहाँ से तैयार करके मैं चाहता हूँ कि अच्छे प्लेटफॉर्म पर भेजूं जिसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए इन फ्यूचर। तो मैं यहाँ कर रहे हैं म्यूजिक बैंडा प्लेटफॉर्म पे सब लगे हुए हैं, अनिला जी हैं, रेनू मैडम है, हमारे जैन सर, जीजे सर हैं, सब लगे हुए हैं करने के लिए, सब आगे काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कहीं जो आप आपने देखा होगा यूट्यूब पे सब अरिजीत सिंह का गाना गाते हैं, सबके मतलब वो कवर सॉन्ग निकालते हैं, कहीं मुकेश जी का गाना उस अपेक्षा कम हुए, कोई मतलब वो म्यूजिक का काम उसमें मुकेश जी का गाना कोई कवर नहीं करते। तो अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक जी का मतलब मुकेश जी का गाना ही कवर सॉन्ग करके हम यूट्यूब पे अब हम शुरुआत हम करेंगे यही प्लेटफॉर्म पे, इसी म्यूजिक बैंडा प्लेटफॉर्म से बच्चों को तैयार करके। तो ये भी हम करने जा रहे हैं। तो क्या मुझे इसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा यूट्यूब पे कवर सॉन्ग के लिए? जी हाँ जी उसमें सेम नहीं करके कॉम्पोजिशन थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करके थोड़ा सेम कॉपीराइट पे तो केस हो जाता है। हाँ वो लेनी पड़ती है। आई थिंक ये हम एक और सेशन रखते हैं संजय जी। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, ये अलग सेशन रखते हैं।
आज बर्थडे सेलिब्रेशन में इससे खलल ना करें। कॉपीराइट। आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। तो ये एटलीस्ट पता चल रहा है लोगों को कि किस तरह से अपने राइट्स और जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है। जाते जाते गौरव एक गाना हैप्पी बर्थडे सॉन्ग मुकेश जी के लिए बनता है और उसके बाद हम लोग का रिले स्टार्ट होगा मुकेश जी का, जिसमें मधु मुकेश जी काफी सारे गाने प्रस्तुत करेंगे। So over to you गौरव जी, and thank you very much संजय जी for being here. थैंक यू। तो मैं आप सबका इजाजत लेना चाहूंगा और अगली बार फिर मिलेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। सब लोग कोरस में गा रहे हैं। गौरव जी स्टार्ट करो। चलो हैप्पी बर्थडे करते हैं मुकेश जी को एक बार। सन 1923 में पैदा हुए थे सर, जितना मुझे याद है। लेट्स सेलिब्रेट। रिनु जी को भी मैं हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। Everyone please unmute yourself. बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुकेश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. And over to you Mukesh ji. Madhu Mukesh ji, over to you sir. Thank you Sanjay ji very much. तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहार चमन हो घटा हो धनक हो, बहार चमन हो घटा हो धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ हैं कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मधु मुकेश जी। और मधु मुकेश जी एक बिजनेसमैन है इंदौर से, और ये लोहे का व्यापार करते हैं और गाने इतने सुंदर गाते हैं। ये कोइंसिडेंस बहुत सुंदर है मधु मुकेश जी। बहुत आपकी मैं चाह रहा वॉइस हूं कि सभी का बहुत एक एक अंतरा सुनाऊं सबको। मधु मुकेश जी हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक एक अंतरा गानों का लेता हूं मैं। आया है मुझे फिर याद वो जालिम,
गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद गुजार। वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले हम। ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद गुजार। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और अगला गाना कौन सा गा रहे हैं मुकेश जी? और उस गाने के बाद मैं दीपक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक दीपक जी ने भी ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। हसरत साहब का लिखा हुआ शंकर जयकिशन का ये गीत 1964 संगम का फिल्म का है ये। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। रेनू कैसा, आपको आपका बर्थडे भी है और आप मुकेश जी की बहुत बड़ी प्रशंसक भी हैं, एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत मजा आ रहा है एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मैं तो मुकेश जी का बर्थडे हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर मधु मुकेश जी से गाने सुन रहे हैं उनके। ये सारे गाने फेवरेट रहे, हम लोग बहुत गाए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपको वो दिन में लौट गई हूँ मैं। सो थैंक्स अ लॉट यू और थैंक्स अ लॉट अनीला। एक दीपक जी भी एक गाना गाना चाहेंगे मुकेश जी का, उसके बाद मधु मुकेश जी आप वापस कुछ और नगमे सुनाएं, बेहतरीन नगमे। बहुत सुंदर आपने चुनिंदा नगमे मुकेश जी के सब सेलेक्ट किए हमें सुनाने के लिए। We are so thankful and everybody at Facebook is loving your songs. Thank you so much. थैंक यू जी। दीपक जी। हाँ दीपक दादा।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पर बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठों ये बाहें मेरी अमानत है। ब्यूटीफुल दीपक बहुत जी, बढ़िया बहुत दीपक दा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दीपक दादा। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। और अब हम वापस मधु मुकेश जी की तरफ चलते हैं, आपसे फिर हो जाए। मुकेश जी का एक सिग्नेचर सॉन्ग कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कल्याण जी आनंद जी का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है ये, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इसके 51 रीटेक्स हुए थे। मुकेश जी सेटिस्फाइड नहीं थे, शाम को करीब 4-5 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुआ था और सुबह 5 बजे जाकर के ये गाना कंपोज हुआ, कंप्लीट हुआ, और जब तक मुकेश जी सेटिस्फाइड नहीं थे गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके 51 रीटेक्स हुए, 51st पर ये जाकर के रिकॉर्ड हुआ था। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, कब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कवन जितने चाहोगे मिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब
कोई छोड़। थैंक यू। बहुत खूब मधु मुकेश जी। थैंक यू सो अब मच। तो मुकेश जी के गानों की बहार बांधी है, समा बांध दिया है, बहुत सुंदर। और अगला गाना आप बस अब गाते जाइए, हम सुनते जाएंगे। और बस बीच में सीमा जी भी एक गाना गाना चाहती है। मुझे ये बता दीजिए कि अभी 6:58 हुआ है, कब तक चल रहा है प्रोग्राम? क्योंकि 9 बजे से 9 से 11 मेरा दूसरा प्रोग्राम है। हम तो चाहते हैं कि रुके ही ना लेकिन थैंक यू। तो फिर अपन 9 से 11 फिर बैठेंगे। ये मैं एक मुकेश जी का और बेहतरीन नगमा सुनाता हूँ आपको। फिल्म मेरा नाम जोकर, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा गाना है। और इसके सिवा जाना कहाँ। और वो है अभी हमारे साथ, मुकेश जी भी हैं हमारे साथ, जैसे आप उनको गाना गा के याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अब मैं अगला गाना सीमा जी से सुनना चाहूंगी। क्या आप इजाजत दे रहे हैं मधु मुकेश जी? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, प्लीज वेलकम सीमा जी। थैंक यू, एक गाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु मुकेश जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे नगमे सुनने को मिल रहे हैं आपसे। वी आर सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके, मैं सुनाऊंगी आपको आंसू भरी है ये जीवन की आप राह। लोगों की अगर कोई फरमाइश हो तो वो भी अच्छा लगेगा मुझे। फरमाइशी गीत दूं तो ज्यादा अच्छा है। एक मैं बोलना चाहूँ। हाँ जी गौरव जी। हाँ, एक मुझे बड़ा पसंद है, तेरी निगाहों में मर अरे मर भाई नो, गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज। अरे डेफिनेटली। ठीक है, सीमा जी के बाद आप ये गाइए। सीमा जी के बाद। थैंक्स। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। ओके सीमा, कैरी ऑन।
गाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, परी बुला दे, तोड़ दे वो, बुला दे कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे, ऐसे जहाँ से क्यों हम दिल लगाए, उनसे कह दे हमें भूल जाए, परी। वेरी गुड सीमा जी, थम्स अप। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब गौरव जी, आपकी फरमाइश तेरी निगाहों पे। बिल्कुल श्योर। थैंक यू। तेरी निगाहों पे मर गए, बाकी अदाओं पे मर गए, क्या करे तेरी निगाहों पे मर गए। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले, जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले, ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले, बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। गाना पूरा ही ले रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा गाना है ये। गौरव जी, थैंक यू। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं, वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं, साथी की जिस पे नजर ना हुई, ऐसा ही प्यासा एक जाम हूँ मैं, बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, ये बड़ा बहुत पैसी अच्छा सॉन्ग है। बहुत मजा बहुत आ सही गया गाना है। मधु बहुत मुकेश भी। बढ़िया। और आई थिंक अब हम एक आखिरी गाना सुन के रैप अप करते हैं, बहुत टाइम आपका लिया है हमने। अगर इजाजत है तो एक गाना मैं गाऊं, मुझे एक गाना बड़ा लग रहा है गाने का, मुझे बड़ा मन हो रहा है गाने का। क्या ना, इसे इजाजत है तो एक गाना सुनते हैं। मुझे लगा कोई ये गाना गाएगा बट गाया नहीं किसी ने, सुनते हैं। Here we go.
जी एक अंतरा आप गाइए, एक अंतरा मैं गाऊंगा इसका। श्योर सेट करके रखो, आप सेट करके रखो दूसरा अंतरा। ओके। ओहरे मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे मिले नदी के जल में। थैंक यू जय जी। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारी पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी इस बादल में कोई जाने ना। ओरे मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओरे मिले नदी के जल में। मुकेश दा, बहुत खूब। आपकी बारी। क्या बात है। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में, सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में। क्या बात है मुकेश जी, क्या बात है। आपका तो नाम ही मुकेश है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं मुकेश नाम पे, कोई बहुत डाउट ही नहीं। वंडरफुल। यही हमारे वरांडा की शान है कि एक ही गाने को एक गायक ने गाया, उसको खत्म दूसरे गायक ने किया और एकदम परफेक्ट सिंगिंग। तो लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। आज सभी थैंक यू गौरव जी, थैंक यू गौरव जी, गिव मी अपॉर्चुनिटी। अरे कम ऑन सर, आपका वरांडा है सर, अपॉर्चुनिटीज कैसी बातें कर रहे हैं। आज अच्छा लगा तुम्हारा गौरव, मेरा तुम्हारा गाना सुन के। थैंक यू सर। ये गाना हमारे वरांडा पे पूरा फिट हो रहा है। आज दिल से आशीर्वाद दिया तुमको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, लव यू। और आज सारे संगीत प्रेमी बहुत आभारी हैं कि संजय टंडन जी हमारे यहाँ पर हमारे साथ आए हैं और हम मुकेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और इतने अच्छे हमारे सिंगर हैं जो हमारे सारे वरांडा में हैं, सबने बहुत खूब गाया है। और मधु मुकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये गाने आपने गाए हैं, समा बांध दिया है, मतलब पुराने दिन याद आ गए, एक एक गाने याद आ रहे हैं। मतलब मैं तो फरमाइश करने वाली थी कि अभी 9 बजे मेरा फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम है, 9 से 11, 2 घंटे का। ऑल द बेस्ट। आप आइएगा, जरूर आइएगा सब लोग। और एक गाना मेरा गा दीजिएगा 9 बजे, वो तेरे प्यार का गम। अरे वो है लिस्ट में, क्या बात है। वो गा दीजिएगा, क्या बात, मैं सुनूंगा।
और सर बिल्कुल। एक गाने गाने बिना तो मुकेश जी का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता है। ओ महबूबा, और वो राज कपूर ने- एग्जैक्टली हाँ, बहुत टफ गाना है, बहुत टफ गाना है। अभी तो गाया मैंने, अभी तो गाया। नहीं, हाँ गाए थे अभी। तब भी गाइएगा। थैंक यू सो मच। तो हम रैप अप करें आज। थैंक यू आप सभी को। और आज सबसे बड़ी बात है, रेणु जी का भी बर्थडे है। देखिए कितना अच्छा रहा इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रेणु जी। मैडम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। रेणु जी अच्छा दिन बहुत हुआ। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा लड्डू मिलेंगे हम सबको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। बधाई मुकेश साहब को भी, और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब जीजे ओके, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रेणु जी। ग्रेट। और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मधु, मुकेश जी, गौरव जी, सीमा जी, दर्शना जी, गुरु जी, एंड ऑफ कोर्स अनिला जी एंड संजय टंडन जी। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस प्रोग्राम को, और हमारे जो लेजेंड है मुकेश जी का हम आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड म्यूजिक वरांडा इज रियली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि इतने सारे प्यारे लोगों के बीच में हम लोगों ने ये बर्थडे सेलिब्रेट किया, और हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच सीमा जी, मधु, मुकेश जी, गौरव, सभी को कि जिन्होंने इतने अच्छे से ये पूरा प्रोग्राम किया, अपने दिल से गाने गाए, और यही सबका प्यार है जो सबको आगे लेके जाने वाला है। और गुरु जी आपने जो बहुत सारी बातें करी, आई होप कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ऐसा लगता है मेरे को। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी बर्थडे टू मुकेश जी अगेन, एंड हैप्पी बर्थडे टू अवर डियरेस्ट रेणु जी अगेन। टेक केयर। Yeah, this is your host DJ signing off from Music Veranda. Bye bye. आपकी